सत्य में रहने के लिए। And I was really amazed with the testimonies that were there today. और भाई एकदम अचंभित हो गए आज की साक्ष्यों के साथ, Because they were mostly about the corporate life. और ये था हमारे जो काम के स्थान है उसके बारे में साक्ष्य थे। And yesterday I happened to be one of the speakers in one of the seminars. और कल भाई अमित एक सेमिनार में वो एक प्रमुख एक वक्ता करके थे वहाँ पे। And we were dealing with all these, the workplace testimony, testifying at the workplace and the work-life balance. और वो ऐसे सेमिनार में थे जहाँ पे काम का जो काम करने की ठिकान और वहाँ और हमारे खुद के जीवन में जो बैलेंस होना चाहिए उसके बारे में वो बात कर रहे थे। And over there the main thing, the bottom line was that we are made the head, not the tail. और प्रभु ने वहाँ पे एक जो मुख्य वचन था कि प्रभु ने हमें सर बनाया है और पूंछ नहीं। And from the life of Joseph we saw his life from pet. Pet means like a loved one. Pet. Pet, from pet to pit, pit to prison, and prison to palace. और वहाँ पे उन्होंने जो यूसुफ उसके जीवन के बारे में देखा है, वो इस तरह से उन्होंने उसके बारे में बताया कि वो अपने पिता का एक चाहता लड़का था। चाहता लड़का को उसके भाइयों ने कैसे गड्ढे में डाला और गड्ढे से उसको उस फारो के पोटीफर के घर पे कैसे लाया और उस जगह से उसको कैसे ऊंचे स्थान पर प्रभु ने बिठाया। Praise the Lord. So we are also made the head, though we might be going in a situation of a pit situation or a prison situation as of now, but one day we are going to be the head. और हमें भी प्रभु ने वही मस्तक बनाया, चाहे भले आज हमारी परिस्थिति वो बंदी ग्रह की तरह हो सकती है, लेकिन हमारी बुलावट है मस्तक के लिए। And so really I was so amazed with the yesterday's seminar and then today two good testimonies came about. God helped them in their bitter situations and God lifted them. और पासवान अमित कहते हैं कि जैसे कल उन्होंने यही एक प्रचार सुना और आज देखा कि दो ऐसे साक्ष्य आ गए, किस तरह से प्रभु ने अपने बच्चे लोगों को उठाया। Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। So today let's turn our Bibles to Exodus 12 and chapter 31. और आज हमारा ध्यान प्रभु के Exodus 12. 12:31 की ओर लगाएंगे। In this we see basically the Israelites were in bondage. और हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोग थे वो बंदीवान थे। When Israelites came, a family of Jacob came into this place. और जब याकूब का परिवार आ गया, they came into Egypt. There were only 66 people. जब याकूब का परिवार मिस्र देश में आ गया, वो जो इजिप्ट है, वो खाली 66 लोग थे। And they were there in this bondage for 430 years. और इजरायली लोग 400 साल से भी अधिक वो बंदीवान थे। Though they were tortured, they were treated like slaves. वो लोग भले ही सताए हुए गए थे, एक दास या गुलाम की तरह थे, but still they flourished. लेकिन उनकी जो है वो बहुगुणित हो गए। They multiplied in this situation also. और उनकी जो बढ़ोतरी हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति में, to that extent, उस स्तर तक that they become a threat to Pharaoh. और उनकी ऐसी बढ़ोतरी हो गई कि वो फारो जो देश का राजा था उसको भी डर लगने लगा। A slave is becoming a threat to the king. एक जो दास है, वो दास एक राजा के लिए एक डरावनी बात हो रही है। This can only happen in the presence of God.
ये सिर्फ प्रभु के सानिध्य में ही हो सकता है। None of our intelligence, none of our knowledge and wisdom can become this situation. और हमारा ज्ञान हमारी बुद्धि से नहीं हो सकता है। Now, in this situation, when they prayed, they came to God. God gave them a restoration. और जब ये बच्चे लोगों ने दुआ की तो प्रभु ने उनको एक पुनर्बांधने की योजना की। God delivered them from their bondage. प्रभु ने उनको उनके बंधनों से छुटकारा दिया। Children of God, when we are in a situation, then God starts working in our life. प्रभु के बच्चे लोग, जब हम एक परिस्थिति में आ जाते हैं, उसी समय प्रभु का कार्य शुरू होता है। Because when situations are favorable, when we are in a good position, when we are in a good thing, we rarely go to God. जब हमारी परिस्थिति अनुकूल रहती है, तो हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। But when the situation is adverse, लेकिन जब परिस्थिति खराब हो जाती है, then we come to God. तो हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं। And then God starts working in our life. और उसके बाद प्रभु का कार्य शुरू हो जाता है। Not when we take baptism, हम बपतिस्मा लेते उस समय नहीं, not the first time when we come to the church. पहली बार जब कलीसिया आते उस समय नहीं, It's only when we surrender ourselves to God. वो कार्य हमारे जीवन में वही वक्त शुरू हो जाता है जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। We might be attending church for years and years together, हम कलीसिया सालों साल आते रहेंगे, but God will never work into our lives. लेकिन प्रभु हमारे जीवन में नहीं कार्य करेगा। It's only when we surrender ourselves into God's hand. जब तक हम प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं करते खुद को, उस समय तक प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। Then and then only God starts working in our life. वही टाइम प्रभु कार्य शुरू करेंगे। Now, if you see, Israelites were delivered from their bondage. हम देखते हैं इजरायली लोग अपने बंधन से उनको छुटकारा मिला, What did they do for that deliverance? और वो छुटकारे के लिए उन्होंने क्या किया? Nothing. They did not do anything. वो छुटकारा मिलने के लिए उनको कोई भी श्रम नहीं करना पड़ा। Everything was done by God Himself. सारी बातें प्रभु ने की। They just prayed to God. They just put their petition to God. उन्होंने अपनी विनती अपनी प्रभु के सामने सिर्फ रख दी, And God delivered them. और प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। If you see all these 10 plagues, हम देखते हैं जो 10 बीमारियां उनके ऊपर आई, over the Egyptians, huh? जो मिस्र लोगों के ऊपर आ गई, Did Israelites contributed in those plagues? और जो बीमारियां मिस्र लोगों के ऊपर है, इजिप्ट पर आए, उसकी जो इजराइल लोग पर हो गई क्या? No. Did Israelites contribute to that thing, like 10 plagues? It was totally God's power and God's intervention in that. और जो 10 प्रकार के पीड़ा जो मिस्र लोग या इजिप्शियंस पर आ गए, इसका कोई भी हाथ जो इजराइल बच्चे लोगों का था, उनकी कुछ भी सहभागिता या उनकी ओर से कुछ सहभागिता उसके लिए थी क्या? They got delivered. They got salvation without doing anything. It's only they accepting God as their personal savior. That's it. उनको सिर्फ प्रभु को स्वीकार करने से उनको छुटकारा मिला। Children of God, if you want salvation, you just need to go to God. Without doing any rituals, without doing anything, you just have to go empty-handed into His hands. अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ प्रभु को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। Now these Israelites experienced salvation and deliverance. जब इजरायली लोगों ने उद्धार और छुटकारा का अनुभव किया,
then they were on the road of eternal life, like the promised land. जब उनको उद्धार और छुटकारा का अनुभव आया, उनकी जो यात्रा और उस राह पर वो चल पड़े जहाँ अनंत काल का जीवन है. Children of God, your way to salvation or way to eternal life is only through having a new birth, or we call it salvation. You say anything, it's a new birth, or you say salvation. But the salvation will lead you to the path of eternal life. आप कुछ भी कहे, लेकिन जो मार्ग है, अनंत काल का मार्ग है, जो आप उद्धार में चलते हैं, वो उद्धार का जो मार्ग ही आपको अनंत काल का जीवन तक ले जाने वाला है. So only salvation or the new birth is the start of your way to the eternal life. सिर्फ और सिर्फ उद्धार ही शुरुआत है अनंत काल के जीवन के लिए. Now, I don't want to go into the theology of how salvation is and what salvation is and how it is applied. I don't want to go into it, but I just want to specify here is salvation is the start of new birth and new life in God. उद्धार की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना ही सिर्फ कहना चाहते हैं कि अनंत काल के जीवन के लिए की शुरुआत उद्धार है. Not your involvement in any church activities, not your involvement in every prayer service, not your involvement in all the things that are happening, every meeting here and there. No. Only your personal salvation commitment to God will lead you to the eternal life. आपके जो उद्धार का अंत है, अनंत काल का जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ जो चलने का मार्ग है, वो ही है. आप कितने प्रेयर मीटिंग में आते हो, कितने कलीसिया में काम करते हो, आपके जो अच्छे काम है वो नहीं है, लेकिन आपका जो जीवन, उद्धार का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उसकी गहराई से ही आप अनंत काल के जीवन तक पहुंच सकते हैं. Now, if you see, if you are born twice, you will die only once. अगर आप देखते हैं, अगर आपका जन्म 2 बार भी हुआ है, लेकिन आपको मरना सिर्फ एक ही बार है. Why twice born? One is physical and one is the spiritual. Then you will die only once, that is the physical one. But if you are born only once, that is just the physical one, you will die twice. One is the physical death and the spiritual death. अभी यहाँ पे बात आपको समझना है कि क्यों 2 बार आप उस समय आपकी मौत होती है, और अब की पहली बार है जब अगर आप उद्धार नहीं पाते हैं तो आपकी एक शारीरिक भी मृत्यु होती है और आपकी आत्मिक भी मृत्यु हो जाती है. लेकिन अगर आप 2 बार जन्म लेते हो तो वो जन्म क्या है? एक नैसर्गिक जन्म है, और दूसरा है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और एक बार आपका नया जन्म होता है. अगर 2 बार भी आप जन्म लेते तो आपको एक ही बार मरना है, और वो है शारीरिक मरण है, क्योंकि आप आत्मा में आपको नया जीवन मिलता है. Praise the Lord. Now, if you have to be delivered or have the salvation, you don't need to do any rituals, you don't need to do all sorts of things, but only one step of faith, that is, I am coming, take me as I am. और जो आपको उद्धार पाने के लिए आपको खुद से कोई भी परिश्रम करना नहीं है, कोई भी पारंपरिक रूढ़ी की बातें करनी नहीं है. सिर्फ आपको एक ही कहना है, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ और मेरा आप स्वीकार कीजिए. And only when you have an experience of new birth or a salvation, then only your life starts aiming towards the eternal life. और जब आपको उद्धार का अनुभव आता है, वो उद्धार का अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ही उद्धार का अनुभव आपको अनंत काल के जीवन तक ले जा सकता है. As we say in Lord's Prayer, Our Father in heaven,
until and unless you have been born or have a salvation experience, you no have authority to call him the Father. और जैसे हम वो प्रार्थना कहते हैं, हे हमारे बाप जो स्वर्ग में है, आपको वो पिता बोलने का अधिकार उस समय तक नहीं मिलता है जब तक आप उद्धार के अनुभव का आप चखते नहीं हो. So the starting point is salvation, and every person has to have an individual assurance of salvation. Again I repeat, every person sitting over here has to have an experience or the confirmation of salvation. Without that, your journey is of no use. और भाई बार बार यही बात दोहराते हैं, अनंत काल के जीवन के लिए आपको उद्धार ही पहली जो पायरी है वो उद्धार ही है. उद्धार के बिना आपकी यात्रा शुरू नहीं हो सकती है. आपको अगर अनंत काल का जीवन चाहिए तो उसके लिए आपको उद्धार पाना चाहिए. यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो छुटकारा है वो आपको मिलना ही चाहिए. And I think so that's the end goal of each one of us. Our lives, our prayers, everything is the end result is what? The eternal life. और जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा लक्ष्य, हमारा जीवन का एक ही केंद्र होना चाहिए कि हमें वो प्रभु की ओर से हमें अनंत काल का जीवन मिलना चाहिए. Now, when Israelites came out of this Egypt, how many were left over there and back to Egypt? और जब इस्राएली लोगों ने अपना देश छोड़ के जो इजिप्ट से आ गए तो कितने लोग वहां पे बचे थे? None. God delivered each Israelite from that bondage. और हम देखते हैं जब वो मिस्र इजिप्ट स्थान को छोड़कर इस्राएली बच्चे बाहर निकले तो उस देश में एक भी पीछे नहीं रह गया था. No one was left in that bondage. कोई भी वो बंदी गृह में नहीं रह गया. But how many landed up in the promised land? लेकिन अभिवचन के देश में कितने पहुंचे? अभिवचन के देश में सारे तो सारे इजिप्ट से निकल गए, लेकिन अभिवचन के देश में कितने जन पहुंच सके? Can you imagine? Can I repeat this sentence again? All were delivered from that Egypt land, but how many landed up in the promised land? प्रभु यहोवा ने सबको इजिप्ट से, मिस्र से तो छुटकारा दिया था. उनको पूरी तरह से मिस्र को खाली कर दिया था, लेकिन अभी वचन के देश तक उस लोगों में से कितने जन पहुंच गए? One complete generation couldn't make it. एक पूरी पीढ़ी उस देश तक नहीं पहुंच सकी. Children of God, getting salvation is God's gift. God will give everyone the experience of salvation. But how many are going to be there in this, the promised land? हम प्रभु के जो लोग बैठे हैं, ये तो प्रभु की इच्छा से हमें सबको उद्धार का जो तोहफा है, प्रभु हमें उद्धार का तोहफा उन्होंने दिया है. हम यहाँ पे बैठे हैं, वो उद्धार पाए लोग हैं, लेकिन उद्धार पाए लोगों से उस अभिवचन के देश तक हम पहुंचेंगे या नहीं, ये आज हमें सोचना चाहिए. Now see, salvation, you don't need to do anything. You don't need to do anything. It's done. On the cross, it's done. You just have to accept it. So salvation, you don't need to do anything. But the journey from your new birth till the end is up to you. You have to fight it out. एक बात तो है कि आज हमें उद्धार के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा है. हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकारा है, उसके लहू से हम धुल गए हैं और हमें उद्धार मुफ्त में मिल गया है. लेकिन उद्धार के रास्ते पर चलने के लिए हमें परिश्रम करना है. So basically, when we are going from the journey, basically, I want to emphasize more on the journey, because
salvation, it's like, a big theory, and it's a different together all ball game. But I would really speak today of the journey from your new birth till the end. आज भाई हमें उद्धार के बारे में इतना गहराई से नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि हमको उद्धार क्या है पता है, लेकिन जो राह हमको चलनी है, जिस राह पर आज हम खड़े हैं, और जो राह या जो मार्ग हमको तय करना है, आज उसके बारे में वो हमें बताना चाहते हैं. An amazing thing is like, for getting salvation, God also helps us to get salvation. Why? He gets us into a situation. Because in a normal situation, we won't go to Him and ask for salvation or deliverance. It's only when He gets us into a problem, in a situation, in a bitter thing, in a pit situation, then we go to Him and we have the experience of salvation. सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रभु की इच्छा है कि हमें उद्धार मिलना चाहिए. कोई मनुष्य के लिए, इसलिए प्रभु की इच्छा. और प्रभु क्या करता है, हमें छुटकारा मिलने के और उद्धार का अनुभव लाने के लिए हमें ऐसे कोई परिस्थिति में डालता है कि जहां पर हम सच्चे परमेश्वर की खोज करते हैं और हम उद्धार पाते हैं. तो उद्धार मिलने की इच्छा हमारे लिए किसकी है? प्रभु यीशु मसीह यहोवा की इच्छा है कि हम उद्धार मिलना चाहिए. उसके लिए हमें कोई परिश्रम नहीं है, क्योंकि प्रभु ही परिस्थिति लाता है, प्रभु ही उद्धार देता है. Now the journey from Egypt to the promised land, was it? Was it a bed of rose? और जो मिस्र से जो यात्रा इजराइल लोगों की शुरू हुई, वो अभिवचन की देश तक जाने के लिए क्या एक बिछौना था, गुलाब का बिछौना था क्या वो? It was a road through wilderness. तो वो मार्ग कहाँ से, वो यात्रा, उसका मार्ग तो एक अरण्य से था. And that too they had to go walking. और वो भी उन्हें कैसे जाना पड़ा? पैदल जाना पड़ा. What is this, God? I have been serving you, I have been praying you, and why this situation in my life? तो आज हम कह सकते हैं, प्रभु आपने मुझे उद्धार दिया, मैं आपकी सेवकाई में लगा हूँ, आज मैं लेकिन फिर ये मेरे जीवन में परेशानी क्यों? Why wilderness situation in my life? ऐसी जो जंगल की जो अनुभव मेरे जीवन में क्यों? The children of God, the road towards the eternal life is through wilderness only. लेकिन प्यारे बच्चे लोग, अगर तुमको जो उद्धार के अंत का मार्ग है, अभिवचन के देश में या अनंत काल के जीवन तक पहुंचने का जो अपना लक्ष्य है, उसका मार्ग है वो जंगल खाई. And how you should do it? Philippians 2:12 says it. और वो कैसे करना है? फिलिप्पी 2:10 को हम देखेंगे. 2:12. 2:12 को देखेंगे. Can someone read? Philippians 2:12. म्हणून माझ्या प्रियजनो, जे तुम्ही सर्वदा आज्ञापालन करीत आहात, ते तुम्ही मी जवळ असता केवळ नव्हे तर विशेष करून आता, म्हणजे मी जवळ नसतानाही बीज व कागद आपले तारण साधून घ्या. How it should be? With fear and trembling. With fear and trembling, and every day that has to be renewed in our life. और बहुत ही डर के साथ और बहुत ही डर के साथ और बहुत ही कांपते हुए हमें उद्धार के रास्ते पर चलना है. Not by doing good deeds, not by coming to church every Sunday, not going for this meeting, that meeting. No. और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उद्धार के मार्ग हमको कैसे चलना है? बहुत डर के साथ, बहुत भय के साथ और कांपते हुए प्रभु के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार बर्ताव करने के लिए. क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? हम जो प्रभु के लिए काम करते हैं वो गंदे कपड़े के माफत है.
तो वो अच्छे काम या कुछ करके हम प्रभु के राह में नहीं जा सकते। And this journey is of every individual. There is no one-to-one free sale going on. और ये यात्रा आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता है। ये यात्रा, ये जो कठिन यात्रा है, हम खुद को ही करनी पड़ने वाली है। इसके ऊपर जैसे अभी बहुत ही बातें एक के ऊपर एक फ्री मिलती है, तो आपके लिए और कोई भी ये यात्रा में परिश्रम नहीं कर सकता है। हम खुद को ही ये यात्रा का जो अनुभव है लेना चाहिए। Spouses, wife's prayer won't deliver the husband, husband's prayer won't deliver the wife, mother's prayer won't deliver children, children's prayer won't deliver mother or father. हमारा जो छुटकारा है वो हमें खुद लेना है। हमारे लिए हमारा पति नहीं ले सकता है, हमारे लिए हमारे बच्चे नहीं ले सकते, पत्नी अपने आदमी को नहीं छुटकारा दे सकती। अगर तुमको छुटकारा या उद्धार के मार्ग पर चलना है तो हम खुद को ही चलना पड़ने वाला है। It's individual run. Every person has to work on his salvation every day with fear and trembling. हमको खुद को ही दौड़ना है। और कैसे दौड़ना है? डरते हुए, कांपते हुए, प्रभु के भय के साथ हमें दौड़ना है। Now that many of the theologians say the journey from Egypt to the Canaan land was almost just 11 days walking that time. और जो तज्ञ लोग हैं जो बाइबल का अभ्यास किए हुए थे, तो कहते हैं कि इजिप्ट से कनान जो देश था उसकी यात्रा सिर्फ 11 दिन की है। But how many years it took them to reach over there? 40 years it took them to reach over there. लेकिन इजराइली बचे लोगों को 11 दिन का जो यात्रा था वहाँ देश में पहुँचने के लिए उनको 40 साल लग गए। Children of God, many of us are sitting over here with late answers to our prayers. आज हम में से भी बहुत जन ऐसी ही है जिनके दुआ का जवाब तुरंत नहीं मिल रहा है। We have been praying for so long, but our heart's desire, our prayers, our needs are not been answered till death. We have been praying for years together. हम बहुत सालों से दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन हम जवाब उसका नहीं देख रहे हैं। Why? The main reason is, और इसका मूल्य कारण क्या है? let's turn our Bible to Numbers 13, गिनती 13 की ओर देखेंगे, wherein we see 12 spies were sent to the Canaan land to spy over it, to see over it. And when they came with the report, what did Israelite react to it? और आप देखेंगे यहाँ पे कि जो योशुआ ने 12 ऐसे लोगों को कनान देश की छानबीन करने के लिए उनको भेजा था। और वो 12 में से जो वहां पे जाके जो उन्होंने तलाशी की और वापस वो तलाशी के बाद उन्होंने क्या रिपोर्ट लेके आए वो हम देखेंगे। Let's see the reaction in Numbers 14, 1-4. और गिनती परमेश्वर मोशेला म्हणाला, मी इस्रायल लोकांना कनान देश देत आहे, तो हेरण्यासाठी माणसे पाठवू, त्याच्या वाडवडिलांच्या प्रत्येक वंशातला एक पुरुष पाठवू, प्रत्येक जण त्याच्यातला सरदार असावा। परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे मोशेने रानातून त्यांना पाठविले। ते सगळे पुरुष इस्रायल लोकांचे प्रमुख होते। त्यांची नावे ही रौबेन वंशातला जकुराचा मुलगा शमुआ। No. Numbers 14, 1-4. गणना 14 आणि 1 ते तेव्हा सर्व मंडळीने गळा काढून विलाप केला आणि लोक रात्रभर रडले। सर्व इस्रायल लोक मोशे आणि अहरोन यांच्या विरुद्ध कुरकुर करू लागले। सर्व मंडळी त्यांना म्हणाली, आम्ही मिस्र देशात मेलो असतो तर बरे झाले असते, किंवा ह्याच रानात मेलो असतो तर बरे झाले असते। तलवारीने आमचा निष्पाप
व्हावा म्हणून परमेश्वर आम्हाला या देशात का नेत आहे. आमच्या पायका मुलांची लूट होईल. आम्ही मिसर देशात परत जावे हेच बरे नव्हे काय. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति। What was the reaction of Israelites when they heard the report? और जब इजरायली लोगों ने उस लोगों की जो बात सुनी तो वो कैसे हो गए, उनका जो हलचल थी वो कैसी थी. They reacted, why we came over here. They started questioning God, or they started, they had a question mark, why did God got us in this situation and all. और जब वो लोग जो उस देश को छानबीन के आए और उन्होंने जो वहां की खबर दी कि वो देश कैसा है, वो खबर दी, तो इजरायली लोगों ने किसके बारे में कुड़कुड़ाना शुरू किया. प्रभु के जो दास है मूसा और अहरोन के बारे में वो कुड़कुड़ाना शुरू किए कि हमें तूने इस जगह पर क्यों लेके आ गया. Children of God, we also sitting over here. One medical report, one negative situation, immediately we start questioning God, His power and His mightiness. हमारे जीवन में भी अगर आज एक ऐसा मेडिकल रिपोर्ट आता है जो सही नहीं है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में जो लाभदायक नहीं है, तो हम किसके बारे में कुड़कुड़ाते हैं. हम परमेश्वर के बारे में कुड़कुड़ाते हैं. We start immediately asking God, why this situation in my life? और फिर बार बार यही सवाल करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में क्यों ऐसी परिस्थिति. Even though Joshua and Caleb, they said, no, we can take that Canaan land immediately. They said, let's go and fight it out immediately. जब सिर्फ दो लोग योशुआ और कालेब ने ही कहा कि हम जा सकते हैं, हम तुरंत उस देश को हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, हम उसके जा सकते. सिर्फ ये दो लोगों ने अच्छी खबर वहां से लेके आए. Yes, that land might be inherited by giants and everything. The report of 10 were also correct, but the report of 2 was also correct. हम देखते 12 लोगों ने जो भी खबर लाई थी वो सही थी. 10 सॉरी, वो 10 लोगों ने जो भी खबर लाई थी वो सही थी, लेकिन ये जो 2 लोग बोल रहे थे वो भी सही है और बाकी लोगों की भी सही खबर थी. Children of God, which voice are you hearing today? लेकिन आज हमें तय करना है हम किसकी वाणी सुनने वाले हैं. Your sickness is not going to go away. Your situation is not going to go away. Your poverty is not going to go away. You are going to be staying in this situation for the rest of your life. Which voice are you hearing when God is saying, hear me and I will deliver you? आज हम किसकी आवाज सुन रहे हैं. ये आवाज सुन रहे हैं क्या आज जो परिस्थिति में है, जो गरीबी में है, जो बीमारी में है, जो हमारी जो बीमारी हमारी परिस्थिति जो अनुकूल नहीं है, उसमें ही हम रहने वाले. ये आवाज हम सुनने वाले हैं कि वो आवाज सुन रहे हैं कि मैं प्रभु हूँ, मैं तुम्हारी परिस्थिति बदलने वाला हूँ. ये आवाज आज हम सुनने वाले हैं. What did Joshua and Caleb see in verse chapter 14, 6-9? What did they say? और योशुआ और कालेब ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे गणती 14:6-9. आणि देश फिरून आलेल्यापैकी नूनाचा मुलगा यहोशुआ व यफुनेचा मुलगा कालेब यांनी आपले कपडे फाडले आणि ते इस्रायल लोकांच्या सर्व मंडळीला म्हणाले, चहूकडून फिरून आम्ही जो देश फिरून आलो तो अतिशय उत्तम आहे. परमेश्वर आमच्यावर प्रसन्न असला तर तो त्या दुधामधाचे प्रभू वाहणाऱ्या देशात आम्हाला नेईल आणि तो देश आम्हाला देईल. तुम्ही परमेश्वराविरुद्ध बंड मात्र करू नका आणि त्या देशाच्या लोकांची भीती बाळगू नका, कारण ते आमचे पक्ष होतील. त्यांचा आधार तुटला आहे, पण आमच्या बरोबर परमेश्वर आहे, त्याची भीती बाळगू नका. What did they say? The Lord is with us, so don't fear. Let's go and capture them.
और कालेब और योशुआ का यही संदेश है लोगों के लिए कि यहोवा हमारे साथ है, हम तुरंत जाके उस जगह का कब्जा कर लेंगे। Children of God, the same situation is with us. The God of that time is with us, and He's saying, trample that devil in front of you and destroy him with just the word. और आज भी वही यहोवा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का यहोवा हमारे साथ है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, आज हम उसके ऊपर जयवंत होना चाहिए। Today is the day. Just trample him, rebuke that evil, and the thing will leave you. आज ही वो दिन है वो शैतानी बातों को कुचलने के लिए और जय पाने के लिए। As the report of 10 say that it is impossible, 2 of the people is saying it is possible, and it is possible today also with everyone sitting over here. वो जैसे जो 12 में से 10 लोगों ने कहा कि ये सारी बातें असंभव है, लेकिन 2 जन ने कहा कि वो संभव है। तो आज हम भी उस बातों को सुनना चाहिए कि सारे जो हमारे जीवन की परिस्थिति है प्रभु के हाथ में देने के बाद सारी बात संभव है करके। And because of their lack of faith, they had to travel 40 years in that wilderness. और उनका जो विश्वास था, जो इजरायली लोगों का जो विश्वास था, वो इतना कमजोर था कि जो 11 दिन की यात्रा उनको 40 साल लगे उसको तय करने के लिए। And at the cost of what? One complete generation not going into the promised और land. क्या कीमत उनको देनी पड़ी? उनकी एक पूरी पीढ़ी उनका नाश हो गया। Though they had the experience of salvation, but they didn't go into the promised land. उनको उद्धार का अनुभव दिया, उनको मिस्र देश से छुटकारा तो मिल ही गया, लेकिन अभिवचन के देश तक वो पहुंच नहीं सके। Children of God, you might be having an experience of salvation. You might have the experience of new birth, but the journey is difficult. And here, many of our Christian believers feel the journey from Egypt to Canaan. आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमको उद्धार का अनुभव मिला है, हम उद्धार में चल रहे हैं, लेकिन क्या हम अभिवचन के देश में जाने के लिए तैयार हैं? हम उस मार्ग से चल रहे हैं क्या? The second thing is, they couldn't go by because grumbling. दूसरी बात है, अभिवचन के देश तक वो पहुंच नहीं सके। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उनका एक ही काम था। क्या काम था वो? कुड़कुड़ाना, 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 सोच लगाना। First they lacked in faith. पहले बात थी उनके पास क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। And the second was that they were grumbling. और दूसरी बात उनमें कुड़कुड़ाना थी। If you see in Exodus 15, 20, 24, we won't read it, but just I'll go through it due to lack of time. Exodus is like, Exodus 15, 20 to 24, you see they grumbled at the bitter water at Mara. Then Exodus 16, they asked for flesh, they were given. And then Exodus chapter 17, we saw that they didn't have water. Over there also they grumbled and all. हम देखते हैं कि निर्गम की पुस्तक में 15 अध्याय से हम देखेंगे वो बच्चों इजरायली लोगों ने कौन सी बात के लिए कुड़काड़ा? जब उनको पानी नहीं मिला तो वो कुड़कुड़ाने लगे, उनको मटन खाने को नहीं मिला तो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। जब पानी में थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो कुड़कुड़ाने लगे। तो बार बार एक ही उन्होंने काम किया। क्या किया? Children of God, we are also the same thing. Small things. My BP shoots up. My sugar levels goes up. My boss fired me. My this happened. My that happened. Small things, and immediately we start blaming God. We start opposing God. We at times to that extent we stop praying. We start reading, but we just are busy with how to solve those issues and find some good doctors for our health. हमारे जीवन का भी वही अनुभव है। अगर एक थोड़ी सी भी अनुकूल परिस्थिति आई या हमें किसी ने दुखाया
या हमारे बीपी जरा ऊपर गया, शुगर बढ़ गई, या हमें कुछ अनबन हो गई, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। That's the main reason why God is not able to work in your life. और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने से पीछे हटता है। Why? Because accuser immediately says, look at Amit, how is he accusing you? Look at Amit, he's just abusing you. और फिर जो शैतान है वो ही हमको बताता है जो हमारे में वो जो कमजोरी है, जो हमारे में कमी है, गति है, उसी को वो फोकस करता है। And what do you expect then God to answer us? फिर हम क्या चाहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह से? When as we see last Sunday on the cross itself, it's done. और पिछले सप्ताह जब अभी ने हमको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरा अपना कार्य वो क्रूस पर क्या किया था? समाप्त किया था। उसने कहा कि इस पूरा मेरा कार्य अभी खत्म हो गया है। But still we go on grumbling, God, this, that, and all our prayers are just focused on that also. Our fasting are also because of I need job, I need this, I need that, my situation needs to be changed, my things should be changed. Our fasting, our prayers, everything is focused in this, me. That's it. अगर आप जैसे भाई अमित ने पिछले सप्ताह में जो मैसेज दिया था कि हम देने से बदले मांगने को ज्यादा आते हैं, और आज भी हम देखेंगे हमारी प्रेयर में, हमारी दुआ में, प्रभु ये दो, प्रभु वो दो, प्रभु ये करो, प्रभु वो करो, प्रभु ऐसा हुआ, प्रभु वैसा हुआ। क्या करते? हम सिर्फ हमारे दुआ में प्रभु को देने के बदले हम क्या करते हैं? सिर्फ हम मांगते हैं। Now, when God was taking them from Egypt and Canaan, God knew that it was a road through wilderness. They have to go walking. So God just didn't tell them, okay, now this is the way. You just go and go ahead now. अभी जो रास्ता था मिस्र से कनान देश के लिए, तो वो एक अरण्य का मार्ग था, एक जंगल का मार्ग था जहाँ पे वो पैदल जा रहे थे। तो प्रभु ने, यहोवा ने ऐसे कहा कि सिर्फ तुम पैदल ही जाओ वहाँ पे। And God knew that on the way they might be diverted. Satan is going to divert them. So God gave them 10 commandments, book of Levites, and then all the rituals into it, then Deuteronomy, and moreover, can we read Exodus 13:21 to 22? 13. त्यांनी रात्रंदिवस चालावे म्हणून परमेश्वर दिवसा त्यांना मार्ग दाखवण्यासाठी अग्निस्तंभातून आणि रात्री त्यांना उजेड देण्यासाठी अग्निस्तंभातून त्यांच्या पुढे चालत असे. Praise the Lord. God just didn't tell them, okay, now this is the route, this is the wilderness, go and let's see, meet you in the promised land. प्रभु ने उनको ऐसे बोलते हैं हवा पर नहीं छोड़ा, बराबर है। और चलने के समय भी दिन के लिए धूप नहीं लगती थी, क्या लाया? बादल का छाया लाया, और रात के समय अंधेरे में गिरने को नहीं छोड़ा। उसने अग्नि का उधर प्रावधान किया, अग्नि का स्तंभ वहां पे लेके आया, उसने उनके लिए सारी सुविधा की बातें भी तैयार की। Children of God, when you have an experience of salvation and when you start the journey towards the eternal life, God is not going to leave you like this, but He has given you the Comforter, Holy Spirit with you. जब हम उद्धार के अनुभव से चलते हैं, अनंत काल के जीवन तक जो हमें जाना है, वो रास्ता आसान बनाने के लिए क्या प्रभु ने दिया? उसकी खुद की आत्मा हमको दी है, वो है पवित्र आत्मा जो हमारी सहायता की आत्मा है, वो हमें उसने दी है।
Just like for Israel, as God knew that the journey was not that easy, it was through wilderness, it was through walking. They were going to be tempted, they were going to be attacked by the evil spirit. So God had made provisions for them. प्रभु यहोवा जानता था कि जब एक इजरायली लोग मिस्र छोड़ के वो कनान देश में जाएंगे, वो जो जंगल का मार्ग है वो कठिन मार्ग है, इसलिए यहोवा ने उनको सारी बातें दी, उनको 10 आज्ञा दी, उनको लेवी का पुस्तक दिया, उनको जो अग्नि स्तंभ था वो दिया, उनको बादल के छाये में रख दिया। सारी जो जरूरत उनकी थी कि जिससे वो गिर सकते हैं उसको गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए सारी सुविधा उनको उन्होंने दी थी। The same way, our journey towards the eternal life, God has given us the Holy Spirit, which will be our guide, director, and everything we need, He is there. उसी तरह प्रभु भी जानता है कि इस उद्धार के मार्ग में, यीशु मसीह के मार्ग में चलना इतना आसान नहीं होने वाला है। हम गिरने वाले हैं, हमारे में कुछ ऐसी कमियां आने वाली है, हम कुछ ऐसे मुंहों में गिरने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने अपनी खुद की आत्मा, जो पवित्र आत्मा दी है, जो हमें सिखाएंगी, जो हमें चलाएंगी, जो हमारे लिए खड़ी हो जाएंगी, जो हमको सांत्वन देंगी दुख के समय में, ऐसी आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। God knows that devil is going to play with our minds. He's going to confuse us. He's going to disturb us. He's going to distract us. Everything he's going to do. Everything he's going to do. He's going to shoot on our weaknesses. Satan is not going to leave us. That's why God has given us the Holy Spirit. प्रभु जानता है और जानता था कि हम जब इस मार्ग से चलेंगे तो बहुत ऐसी कठिनाइयां आएंगी, बहुत ऐसे अवसर आएंगे जहाँ पर हम गिरेंगे, जहाँ पर हम प्रभु के बारे में हम शक भी कर सकते हैं, गिर सकते हैं, हमको उस दर्द और भयानक यात्रा से जाने हम जाएंगे। इसलिए प्रभु ने अपना सहायक भेजा, वो है पवित्र आत्मा। But what are we doing with the Holy Spirit? Is a very big question. We read Bible, we understand Bible, we have the best of the best knowledge of the Bible or the Word, but when it's to act or to work the Holy Spirit, we fail in that. तो आज उस आत्मा जो पवित्र आत्मा है, जो खुद प्रभु की आत्मा आज प्रभु ने हमको दी है, तो उस आत्मा के साथ हम क्या कर रहे हैं? आज उस आत्मा को हम दुख दे रहे हैं क्या उसकी सहायता और उसके मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं? आज हमें सोचना है। Many of we are facing failures, we are facing sicknesses, we are facing situations, and we are not getting solutions out of it. Why? Just because of lack of Holy Spirit in our lives. We cannot hear His voice. आज हम देखते हैं सालों साल परिस्थिति नहीं बदल रही है, सालों साल उस दुख की लेके हम चल रहे हैं, वो सालों साल जो हमारे में कमियां घटियां है उसमें कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। आज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की वाणी हम नहीं सुन रहे। And I'm telling you, your Holy Spirit's voice will not be heard until and unless you go in your quiet time. जब तक प्रभु के साथ एक जो बोलते हैं ना अलग समय, जो दो प्रेमी जोड़ी बैठती है और अपना एक अलग समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, उसी तरह हमारा जो प्रेमी है, जो पवित्र आत्मा के साथ जब तक हम एक स्पेशल टाइम नहीं रखते हैं और उधर जाके हम बात नहीं करते हैं, उस समय तक हमें वो छुटकारा
नहीं मिलने वाला। Yes, apart from our Bible reading, apart from our prayer, every individual has to have a quiet time with the Holy Spirit. हम जो सब हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु के सानिध्य में हम साथ बैठ के उसकी वाणी सुनने के लिए हम कितना समय देते हैं। हर एक विश्वासियों को प्रभु के साथ शांत बैठने का एक अनुभव होना ही चाहिए। It has to be there in your life so that you can hear the voice of the Holy Spirit. Because Holy Spirit is ready with the solutions. But only the thing is, are we ready to hear that voice? 24 घंटा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हमारे सारे सवालों का जवाब किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। लेकिन क्या हमारे पास वक्त है क्या वो जवाब सुनने के लिए? Yes, only the thing is expected is what? Time. We need to give him time to hear. एक ही सिर्फ बात की प्रभु हमसे पूछताछ करता है, वो क्या है? वक्त। किसको वक्त देना है? प्रभु पवित्र आत्मा को या हमको देना है पवित्र आत्मा को? हमको प्रभु के सामने वक्त बिताना है। The simple thing is, if I'm conversing with you and I tell you my problems, I tell you all my problems and I just go away, what solution am I going to get? If I'm telling you something, I need to just wait and hear from you also. You need to give time to the other person to speak to you. अगर हम किसको हमारा प्रॉब्लम्स बोलते हैं, हम बोल रहे हैं, प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, तो आगे का आदमी सुन भी लेने के लिए उसको हम क्या देना चाहिए? वक्त देना चाहिए। No, we need to give him time to speak to us. And we need to sit over there silently to hear what is he saying. But we have the time of only just bombarding all our problems, all the menu cards are be given, and immediately we run away from there. हम क्या करते हैं? हमारे सारी बातें कैसे जो है, लेकिन उससे भी सुनने के लिए हमें क्या देना चाहिए? वक्त देना चाहिए। Children of God, God has answered all our prayers. God has answered everything. God has heard all our petitions. God has heard all our problems. God has heard everything. But now onwards, let's give him time to speak. प्यारे बच्चे लोग, आज एक ही करना है। हमने तो हमारी सारी बातें बता दी है। आज हमें एक ही करना है, प्रभु की सानिध्य में बैठ के वो क्या कहना चाहता है वो हमें सुनना। It's not just one day. Don't take it that today evening I'll go and immediately downloading will start. No, it's not going to be like this. It might take 1 week, it might take 6 months, it might take 6 years. But you have to wait on God to hear him speaking. तो ऐसे नहीं होने वाला वो 2 मिनट्स मैगी नूडल के माफक डाला और तैयार हुआ नहीं। हमें भी पवित्र आत्मा का कार्य करने के लिए समय देना। Because he has tolerated us from so years, let's give him also time to tolerate. Let's also wait and watch him. He's been tolerating us for so many years. हम अपना पुराना अपनी समस्या डाल के उसके सामने इतने साल लगाए हैं, बरोबर? सालों साल खाली कहते ऐसे बातें। अभी उससे भी ग्रहण करने के लिए, उससे भी बातें सुनने के लिए हमें क्या देना पड़ने वाला है? हमारा वक्त देना। So children of God, first thing is, salvation is the most important thing. If you have not yet received that confidence or confirmation, please get that confirmation of salvation immediately. That should be the utmost prayer if you have no confirmation of that salvation or new birth. Yeah. एक सबसे अनंत जीवन का मार्ग मिलने के लिए इस दुनिया छोड़ने के बाद अगर हमें स्वर्ग के द्वार में पहुंचना है, तो उसके लिए सिर्फ यीशु मसीह ही उद्धार देता है।
और वो उद्धार कैसे है, हम कबूल करना चाहिए कि हम क्या है, पापी हैं, हमने पाप किए हैं और प्रभु के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है,